hostile individual killed, mana absorbing process starting. 0%, 1%, 5%, 30%, 70%, 100%. Mana successfully absorbed converting procedure. 3, 2, 1, 0. Mana successfully converted into experience. 127 experience points awarded to the host. Emergency quest complete. Level up. Ha! एरिक की हंसी जंगल में गूंज उठी। इतनी सच्ची, इतनी दिल से निकली हुई हंसी उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी को मारने के बाद वह ऐसा महसूस करेगा। ये सिर्फ लोगन, कॉनल और ऑर्सन से छुटकारा पाने की खुशी नहीं थी, बल्कि उन तीनों को मारकर जो एक्सपीरियंस मिला था, वही असली नशा था। एक ही दिन में पूरे 3 लेवल। हंसते-हंसते उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हर पल और ज्यादा ताकतवर हो रहा है। माना उसकी नसों में भरता जा रहा था। बहुत जल्द वह ऐसे काम कर पाएगा जिनके बारे में यहां कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। वो एहसास, वो खुशी, उसे घंटों हंसते रहने पर मजबूर कर रही थी। उसे बार-बार वही पल याद आ रहा था जब उसने उन 3 मदरफकर्स को नीचे गिराया था। सिस्टम, शो मी द स्टेटस स्क्रीन। तुरंत उसकी आंखों के सामने नीले और सफेद रंग की एक विंडो खुल गई। होस्ट इंफॉर्मेशन, नेम एरिक रोमानो, एज 16 लेवल 6, एक्सपीरियंस 473 611 डीएनए पॉइंट्स 360, हेल्थ 340, माना 270 एट्रीब्यूट्स, स्ट्रेंथ 16, 7 डेक्सटेरिटी 7, एनर्जी 12 अवेलेबल एट्रीब्यूट पॉइंट्स, 5 powers biological supercomputer powers, brain crystal manipulation. Brain crystal power extraction allows the absorption of the brain crystal, making the host able to acquire the power contained within. Notice, the DNA must be changed in order to allow the body to use the power. See DNA extraction. Locked. 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 Brain crystal power strengthening allows the gaining of the energy attribute points. DNA manipulation. DNA extraction allows the absorption of foreign DNA, making the host able to replicate it inside his own body. Notice, changing the DNA is a slow process, and it is required to use new brain crystal powers. Locked. Locked, locked, DNA strengthening allows the gaining of the strength, intelligence, and dexterity attribute points. Analysis gives the host information about his surroundings, plants, creatures, and ores. Brain information injector. It allows the injection of information directly to the brain based on touch. Device manipulation allows the host to manipulate electronic and mana-driven devices based on touch. Host's powers, rapid growth, plants. A Sigma 2E ranked allows the host to make plants grow faster. Sharpening. A Sigma 1D ranked makes everything sharper according to the quantity of mana imbued into the item or body part. Mana poisonous spikes. A Sigma 1E ranked creates ethereal poisonous spikes from the user's back. The amount of toxicity and spike length depends on the mana used. Skills. Kyokar hand-to-hand style, beginner. A military fighting style developed in France. Whoa, मेरा mana काफी बढ़ गया है, एरिक ने कहा। सिस्टम, सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स एनर्जी में डाल दो। तुरंत उसके पूरे शरीर में ऊर्जा की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। वो एहसास ताजगी से भरा हुआ था, जैसे हर कोशिका जिंदा हो उठी हो। अब उसके पास पहले से कहीं ज्यादा एनर्जी थी। अब वो एक पूरा ई रैंकर माना जा सकता था। अगर वो एनर्जी बढ़ाता रहा तो डी रैंक तक पहुंचना बस वक्त की बात थी। एरिक की नजर लोगन की लाश पर गई और तभी उसके दिमाग में एक काली सोच उभरी। आफ्टर ऑल, व्हाई नॉट? वो लोगन के शरीर के पास गया, बहते खून में उंगली डुबोई और उसे चाट लिया। उसी पल उसके दिमाग में एक नोटिफिकेशन गूंजी। Logan reads DNA acquired. Starting the analysis. Analysis complete. 50 DNA points are required to extract the DNA. 360 DNA points detected. Commencing extraction? No, एरिक ने सख्ती से कहा। उसे एक्सट्रैक्शन घर जाकर करनी थी। लेकिन उसकी थियरी सही थी। वो इंसानों की ब्रेन क्रिस्टल पावर्स भी निकाल सकता था। उस वक्त एरिक पूरी तरह से एक विकृत मानसिक हालत में था। उसे एहसास ही नहीं हो रहा था कि उसके ख्याल कितने अंधेरे हो चुके हैं। लोगों को मारना, उनका खून और ब्रेन क्रिस्टल चुराना, ये सब उसे अब गलत नहीं लग रहा था। वो लोगन के सिर के पास गया, अपने हाथ अंदर डाले और धीरे-धीरे उसका ब्रेन क्रिस्टल निकाल लिया। साफ करने के बाद उसने उसे पूरा निगल लिया। Logan reads brain crystal acquired. Starting the analysis. Analysis complete. 50 DNA points are required to extract the power. 360 DNA points detected. Extraction is not advised. The host has incompatible DNA. Extraction aborted. Ha 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 ha.
एरिक फिर से पागलों की तरह हंस पड़ा। इतनी सारी पावर्स के साथ मैं इनविंसिबल बन जाऊंगा। काश मैं ये पावर्स दूसरों पर भी इस्तेमाल कर पाता। अब जब उसे पता चल गया था कि वो इंसानों की पावर्स भी अब्सॉर्ब कर सकता है, वो वापस उस जगह गया जहां कोनल, ओरसन और लोमलिंस मरे थे। उसने उनका खून और ब्रेन क्रिस्टल्स भी अब्सॉर्ब कर लिए। उसके पास लोगन, कोनल और ओरसन की एबिलिटीज लेने लायक डीएनए पॉइंट्स थे, लेकिन लोमालिन की एबिलिटी के लिए अभी कम पड़ रहे थे, जबकि वो पावर खतरनाक हालात में काफी काम आ सकती थी। हालांकि लोगन की पावर के साथ उसे अब मिली लड़ाई की जरूरत ही नहीं थी। दूर से जहर फेंको और बस इंतजार करो कि दुश्मन मर जाए। सबसे खतरनाक बात यह थी कि किसी को भी पता नहीं था कि उसके पास ये पावर्स हैं। वो किसी को भी मार सकता था और कोई भी मौत को उससे जोड़ नहीं पाता। लोमालिन की पावर के लिए उसे सिर्फ 4 दिन इंतजार करना था। एरिक अपनी ही कल्पनाओं में इतना डूब चुका था कि उसे यह भी महसूस नहीं हुआ कि शाम हो चुकी है। 2 हफ्ते पहले जो इंसान वो था, वो आज अपने ही ख्यालों को पहचान नहीं पाता। खून और ब्रेन क्रिस्टल्स इकट्ठा करने के बाद उसने लोगन, कोनाल और ऑर्सन को लूटने का भी फैसला किया। उनके पास काफी पैसे थे, शायद स्कूल में जिन लोगों को उन्होंने तंग किया था उन्हीं से छीने हुए। शायद किसी को उनकी कमी भी महसूस नहीं होगी। उसने लाशों को बैरियर और गेहूं के खेतों से दूर छुपा दिया ताकि अंदर से कोई देख न सके। फिर उसने अपने कपड़े उतारे, जला दिए और नए कपड़े पहन लिए। उम्मीद है थाइड्स जल्दी ही लाशें खा जाएं। उसने डरावनी मुस्कान के साथ कहा। सब कुछ साफ करने के बाद वो ब्रीच की तरफ बढ़ा। वहां से मिस्टर फॉक्स के खेत की ओर निकल पड़ा, जहां उसे एक और काम का दिन बिताना था। सुनहरे गेहूं के खेतों के बीच से चलता हुआ एरिक किसी भूत की तरह लग रहा था, एक बदले की आत्मा जिसे अब कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। लोग कहते हैं कि बदला लेने से सुकून नहीं मिलता, लेकिन एरिक के लिए उसका बुरा सपना आखिरकार खत्म हो चुका था। थोड़ी देर बाद वो कच्ची सड़क पर पहुंचा और धीरे धीरे मिस्टर फॉक्स के खेत की तरफ चलने लगा। बूढ़ा आदमी पहले से ही खेत में काम कर रहा था, सफेद बनियान जिस पर कीचड़ के दाग लगे थे। एरिक को देखते ही उसने कहा, फिर से देर हो गई। सॉरी मिस्टर फॉक्स, आजकल चीजें थोड़ी एक्लेक्टिक हो गई हैं। सॉरी मत बोलो, बूढ़े ने गुस्से में कहा। आज की मजदूरी से मैं $5 काट लूंगा। सर, ये फेयर नहीं है, एरिक ने गुस्से में कहा, लेकिन वो अपनी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं कर सका। आखिरकार वो अपने एम्प्लॉयर से बात कर रहा था, ज्यादा बोलता तो नौकरी भी जा सकती थी। ऐसा मत दिखाओ जैसे मैंने तुम्हें पहले ही काफी मौके नहीं दिए हो, एरिक। ये पहली बार नहीं है जब तुम देर से आए हो। एरिक के पास चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो जानता था कि मिस्टर फॉक्स सही कह रहा है। ऊपर से कोनल ऑर्सन और लोगन की मौत की वजह से उसका दिमाग पहले से ही बुरी तरह उलझा हुआ था। अब चलो काम शुरू करें, मिस्टर फॉक्स ने कहा। यस सर। इसके बाद एरिक चुपचाप उन खेतों की तरफ चला गया जिन्हें मिस्टर फॉक्स ने पिछले दिन साफ किया था। पूरे रास्ते वो एक शब्द नहीं बोला। उसका दिमाग जंगल में हुई उस घटना के इर्द गिर्द घूमता रहा। क्या उसने सच में 3 लोगों को मार दिया था? हाँ, उसने किया था। वो अपनी भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहा था। एक तरफ उसे उन 3 बुलीज की मौत से खुशी मिल रही थी और दूसरी तरफ पछतावा। क्या मैं सच में उन्हें मारने का पछतावा कर रहा हूं? एरिक ने खुद से पूछा, यकीन न कर पाने की हालत में। मिस्टर फॉक्स ने तुरंत महसूस कर लिया कि एरिक कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो उसे काफी समय से जानता था। एरिक ज्यादा बोलने वाला नहीं था, लेकिन आज तो वो बिल्कुल पत्थर की तरह चुप था। सब ठीक है एरिक? उसे लगा शायद पैसों की कटौती से वो नाराज है। कुछ नहीं सर, एरिक ने कहा, लेकिन वो झूठ था। उसके अंदर जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई थी। अभी-अभी उसे एहसास हुआ था कि उसने ठंडे दिमाग से 3 लोगों की जान ली और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वो उनकी मौत से खुश था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अब वही इंसान नहीं रहा, जैसे उसके अंदर का कोई हिस्सा कहीं खो गया हो। साथ ही उसे यह भी महसूस हो रहा था कि लोगन और बाकी लोगों ने उससे उसकी इनोसेंस छीन ली थी। खेतों तक पहुंचते ही एरिक लगभग एक मशीन की तरह काम करने लगा। उसने अपने शरीर में माना को चैनल करना शुरू किया। उसी पल एक बिजली जैसी सनसनी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई और उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। आज जो दबाव वो महसूस कर रहा था, वो सामान्य से कहीं ज्यादा था। एरिक ने अंदाजा लगाया कि ये उसके बढ़े हुए एनर्जी पॉइंट्स की वजह से है। ज्यादा मैना का मतलब था ज्यादा प्रेशर।
अधिकतर ब्रेन क्रिस्टल पावर सीधे इस बात से जुड़ी होती है कि कोई इंसान कितनी माना मैनिपुलेट कर सकता है। जितनी ज्यादा माना, उतनी ही ज्यादा ताकत। एरिक ने कुछ देर तक पूरे शरीर में माना को सर्कुलेट किया। ये वो मात्रा थी जिसे उसने अपनी जिंदगी में कभी कंट्रोल नहीं किया था। जैसे ही वो उसे रोक नहीं पाया, उसने सारी एनर्जी जमीन की तरफ छोड़ दी। एक जबरदस्त गर्म लहर उसके ऊपर से गुजरी। आसपास की हवा गर्म और नमी से भर गई। उसकी नाक में हरियाली की गंध भर गई। लेकिन एरिक ने अपनी मौजूदा ताकत को पूरी तरह अंडर एस्टिमेट कर लिया था। सेकंडों के अंदर ही मिस्टर फॉक्स के खेत का एक बड़ा हिस्सा उगाया। पहले जहां वो बस कुछ स्क्वायर मीटर्स तक ही असर डाल पाता था, अब पूरा इलाका बदल चुका था। उसके सामने एक छोटा सा जंगल खड़ा हो गया। पेड़, बेलें, झाड़ियां, सब कुछ बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहा था। एरिक हैरान रह गया। पीछे खड़े मिस्टर फॉक्स की आंखें फटी की फटी रह गई। एरिक पहले कभी इतना ताकतवर नहीं था। इस बार पेड़ कई मीटर ऊंचे थे और फल असामान्य रूप से बड़े। मिस्टर फॉक्स पास के एक पेड़ के पास गया, एक फल तोड़ा और काट लिया। ये क्या बकवास है? फल की मिठास अविश्वसनीय थी, सामान्य फसलों से भी ज्यादा और एरिक द्वारा पहले उगाए गए फलों से भी। कुछ ही पलों बाद एक और पेड़ उगाया, फिर एक और फिर दर्जनों। एरिक की पावर के साथ फूल और झाड़ियां भी उगने लगीं, बिना धूप, बिना पानी। एरिक, मिस्टर फॉक्स बुदबुदाया, हम अमीर होने वाले हैं। हम? एरिक ने हैरानी से कहा। उसने मिस्टर फॉक्स की लालच भरी आवाज तुरंत पहचान ली। किसान जानता था कि अब वो एरिक को खो नहीं सकता। उसकी पावर अब बहुत ज्यादा कीमती हो चुकी थी। अब से मैं तुमसे सिर्फ अपनी पावर इस्तेमाल करने को कहूंगा, मिस्टर फॉक्स ने कहा। कटाई के लिए मैं और लोगों को रख लूंगा और तुम्हें रोज $50 दूंगा। क्या? एरिक की आंखें फैल गईं। $50? उसे पता था कि मिस्टर फॉक्स उसका फायदा उठा रहा है, लेकिन इस वक्त वो कोई और नौकरी ढूंढ भी नहीं सकता था। ऊपर से स्कूल कुछ ही हफ्तों में खत्म होने वाला था और गर्मियों के बाद उसे मिलिट्री में जाना था। वैसे भी मिस्टर फॉक्स के यहाँ काम पार्ट टाइम जैसा ही था। ज्यादा मेहनत नहीं, ट्रेनिंग की आजादी और स्कूल पर भी असर नहीं। अगर उसे सच में रोज $50 मिलने वाले थे, तो वो बिना ज्यादा काम किए एक रेगुलर सैलरी कमा रहा था। मतलब, अगर तुम इतनी कम समय में इतना उगा सकते हो, तो ये फार्म के लिए बहुत बड़ा फायदा है, मिस्टर फॉक्स ने झिझकते हुए कहा। कम पैसे देना अनफेयर होता। एरिक उस रकम के बारे में सोचकर ही कांप गया। अगर वो रोज काम करे तो आराम से जी सकता था। बस अफसोस ये था कि गर्मियों के बाद उसे मिलिट्री स्कूल जाना था। अगले कुछ घंटों तक एरिक ने खेत में मदद की। मिट्टी हटाई, पत्थर साफ किए, सब्जियां काटी। मिस्टर फॉक्स, स्कूल खत्म होने के बाद मैं सुबह सुबह काम पर आ जाया करूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, किडो, बूढ़े ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। वो अपनी गोल्डन गूस को जाने देने वाला नहीं था। काम खत्म होने के बाद एरिक स्टेशन की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो उसी जगह से गुजरा जहां लोगन, खोनेल और ऑर्सन ने उसका पीछा किया था। दृश्य उसके दिमाग में लौट आए। उसे याद आया कि मरते वक्त वो कितने डरे हुए थे, और उसे ये सोचकर अजीब सी खुशी महसूस हुई कि शायद उन्होंने बहुत दर्द में दम तोड़ा। उसी पल उसे खुद से नफरत भी हुई। वो ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता था। एरिक ने जोर से सिर झटका। ये लोग अपने अंजाम के हकदार थे, खासकर लोगन। खोनेल और ऑर्सन भी कम नहीं थे, बस लोगन से थोड़ा कम। किसी को मारना सही नहीं था, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया होता तो वो उसे कभी चैन से जीने नहीं देते, अवेकनर होने के बाद भी। शायद सब कुछ होने के बावजूद यही सही फैसला था। स्टेशन पहुंचकर एरिक बेंच पर बैठने के बजाय ट्रैक्स के पास खड़ा हो गया। आसपास काफी लोग थे और कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी पेट्रोल कर रहे थे। ट्रेन वाली घटना के बाद जब लोगन ने लोगों को गिरा दिया था, काफी शिकायतें आई होंगी, इसलिए गार्ड्स पहले से ज्यादा थे। ट्रेन आई। एरिक अंदर बैठा, हमेशा की तरह खिड़की के पास। पूरा रास्ता वो यही सोचता रहा कि उसने क्या किया है, लेकिन फिर भी उसे उन तीनों के लिए अफसोस महसूस नहीं हुआ। आखिरकार हमला उन्होंने पहले किया था। फिर भी उसका मूड बेहद खराब था। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पहुंचते ही उसने स्टेशन छोड़ा और सीधे स्कूल की तरफ चल दिया। वहां पहुंचते ही वो जिम चला गया, जहां ग्वेन, फ्लॉयड और एम्बर पहले से मौजूद थे। हाय एरिक, एम्बर ने जोश से कहा। एरिक का दिमाग कहीं और था। वो बस हल्का सा बोला हाय और सीधे प्रोफेसर मैकेलिस्टर के पास चला गया। आज इसे क्या हो गया? पता नहीं, ग्वेन ने कंधे उचका दिए। शायद किसी से लड़ाई हो गई हो। वो सच के बहुत करीब थी।
एरिक ने प्रोफेसर मैकेलिस्टर के साथ ट्रेनिंग की, लेकिन आज पूरी हुई क्वेस्ट की नोटिफिकेशन भी उसका मन हल्का नहीं कर पाई। एरिक, ट्रेनिंग खत्म होते ही एम्बर ने पुकारा, लेकिन इस वक्त एरिक बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। व्हाट? एरिक ने झुंझलाकर जवाब दिया। उसकी आवाज में चिड़चिड़ापन साफ झलक रहा था। एम्बर उसके लहजे से चौंक गई। उसे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने ज्यादा सोचने से खुद को रोक लिया। क्या हुआ है? उसने धीरे से पूछा। यह सवाल सुनते ही एरिक के अंदर जैसे कोई ट्रिगर दब गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने ठंडे स्वर में कहा, यह सोचते हुए कि शायद वो पकड़ा जा चुका है। ऐसा तो नहीं लग रहा, एम्बर ने जवाब दिया। तभी ग्वेन और फ्लॉयड भी उनकी तरफ आने लगे। जैसा मैंने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरिक ने फिर कहा। वो शक पैदा नहीं करना चाहता था, लेकिन एम्बर को उसका बर्ताव बेहद बेरुखा लग रहा था। इसे कैसे पता चला? एरिक ने मन में सोचा। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि यह सब सिर्फ उसके दिमाग में चल रहा था और एम्बर बस दोस्ताना बनने की कोशिश कर रही थी। तभी ग्वेन आगे आई। वो एरिक के सामने रुकी। उसकी आंखों में गुस्सा था। एरिक ने यह नोटिस किया और सीधे उसकी आंखों में देखने लगा, इंतजार करते हुए कि वो क्या कहेगी। ग्वेन ने देखा कि एरिक की आंखें उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ी लग रही थीं, जैसे उनकी आखिरी मुलाकात के बाद सालों बीत गए हों। शायद सच में उसके साथ कुछ बड़ा हुआ था, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि वो उसकी दोस्त से ऐसे बात करे। उससे इस तरह बात करना बंद करो, ग्वेन ने कहा। मैं कुछ नहीं कर रहा, एरिक ने जवाब दिया। उसका पोस्चर थोड़ा अग्रेसिव हो चुका था। तभी फ्लॉयड बीच में आ गया। हे हे, शांत हो जाओ तुम दोनों। तुम 3 साल के बच्चे नहीं हो, इसने शुरू किया, ग्वेन ने कहा। देखो, मुझे नहीं पता तुम मुझसे क्या चाहते हो, लेकिन मुझे प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, एरिक ने चुंचलाकर कहा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो, एरिक? एम्बर बस काइंडली बात कर रही थी, ग्वेन ने कहा। एम्बर अब साफ तौर पर अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। कुछ नहीं, सॉरी, एरिक ने कहा। उसे एहसास हो गया था कि वो सब गड़बड़ कर रहा है। बस मेरा दिन बहुत खराब गया है, ओके? इसका मतलब ये नहीं कि तुम रूड बनो, ग्वेन ने जवाब दिया। मैं आज बात करने के मूड में नहीं हूं, सच में। मुझे अकेला छोड़ दो, एरिक ने कहा और तेजी से वहां से चला गया। एम्बर को उसका बर्ताव थोड़ा हर्ट कर गया, लेकिन उसने उसे ज्यादा अहमियत नहीं दी। उसने अपनी भावनाएं दबा ली। वो जाते हुए एरिक को देखती रही। उसे यकीन था कि ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है और शायद एरिक के साथ कुछ गंभीर हुआ है। वेट एरिक, उसने कहा, लेकिन एरिक ने अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गया। अब एरिक को एहसास हो चुका था कि वो लगभग सब कुछ बिगाड़ चुका है। ऊपर से वो ग्वेन, फ्लॉयड और एम्बर के साथ भी रूड हो गया था। वही लोग जो उसकी जिंदगी में दोस्ती जैसा कुछ होने का इकलौता जरिया थे। लेकिन जो हो गया था उसे बदला नहीं जा सकता था। उसे बस यही उम्मीद थी कि ग्वेन, फ्लॉयड और एम्बर ज्यादा बुरा नहीं मानेंगे। अभी उसे अकेला रहना था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो चलते चलते स्कूल के गेट से बाहर निकल गया। बाहर कुछ लोग अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। एरिक उन्हें नहीं जानता था। सच कहें तो ग्वेन, फ्लॉयड और एम्बर के अलावा वो किसी को नहीं जानता था। एक तरफ उसे अजीब लगता था कि 16 साल की उम्र में उसके कोई दोस्त नहीं है। दूसरी तरफ उसे फ्रैंक के ज्यादातर लोग पसंद ही नहीं थे। सच कहें तो लगभग कोई भी नहीं। इसलिए उसे उनसे दोस्ती करने की चाह भी नहीं थी। वैसे भी वो ज्यादातर जिंदगी अकेला ही रहा था। थोड़ा और अकेलापन उसे कुछ खास महसूस नहीं कराता था। एरिक स्टेशन पहुंचा और फिर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की ट्रेन पकड़ ली, जहां उसका घर था। घर पहुंचते ही उसके दिमाग में फिर से अंधेरे ख्याल भरने लगे। उसे समय बर्बाद नहीं करना था। उसके पास करने के लिए बहुत कुछ था। सबसे जरूरी था 4 ब्रेन क्रिस्टल पावर्स को अब्सॉर्ब करना। सिस्टम, चारों डीएनए सैंपल्स और पावर्स अब्सॉर्ब करने में कितना समय लगेगा, एरिक ने पूछा। आंसर, डीएनए पॉइंट्स सभी 4 डीएनए और पावर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपर्याप्त हैं। होस्ट को सलाह दी जाती है कि वो तय करे कि क्या एक्सट्रैक्ट करना है और बाद में बाकी के लिए डीएनए पॉइंट्स इकट्ठा करे। ठीक है, एरिक ने कहा। सारे डीएनए अब्सॉर्ब करो और लोमलिन की पावर को छोड़कर बाकी सब पावर्स एक्सट्रैक्ट करो। कितना समय लगेगा? आंसर, सभी पावर्स अब्सॉर्ब करने में 9 घंटे लगेंगे। क्या प्रक्रिया शुरू की जाए? यस, पहले डीएनए एक्सट्रैक्शन शुरू करो, एरिक ने कहा। उसे पता था कि दर्द होगा, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। प्रक्रिया शुरू होने से पहले एरिक ने दरवाजा बंद किया, लाइट्स ऑफ की और सोफे पे पर लेट गया। वो खूब घूरता रहा। 10 मिनट बाद उसका सब्र टूट गया। स्टार्ट, उसने कहा।
उसी पल एक्सट्रैक्शन और डीएनए एडजस्टमेंट शुरू हो गया। दर्द ने हमेशा की तरह उसके शरीर को चीरना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग लोगन, कोनल, ओर्सन और लोमलिन डीएनए एक्सट्रैक्शन। 200 डीएनए पॉइंट्स उपयोग किए गए। एक्सट्रैक्शन शुरू। होस्ट को बिस्तर पर लेटने की सलाह दी जाती है। एक्। एरिक के मुंह से दबी हुई आवाज निकली। वो चीखों को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर डीएनए सैंपल के साथ उसके दिमाग में चुभने वाला दर्द फैलता चला गया। उसकी सोच धीमी पड़ गई। दुनिया घूमती हुई महसूस होने लगी। उसी समय उसके कानों में अजीब सा एहसास हुआ। उसकी सुनने की क्षमता अचानक कम हो गई और कुछ ही सेकंड्स में टिनिटस शुरू हो गया। वो बेहद परेशान करने वाला था। दर्द और बढ़ गया, मानो उसका शरीर जल रहा हो और उसके अंगों को जिंदा काटा जा रहा हो। आंसू उसके चेहरे से बहने लगे। वो चीखों को दबाकर बस करा सकता था। 15 मिनट बाद उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा और फिर धीरे धीरे दर्द कम होने लगा। प्रोसीजर कंप्लीट। होस्ट डीएनए अब लोगन, कोनल, ऑर्सन और लोमलिन की ब्रेन क्रिस्टल पावर्स को अकोमोडेट करने में सक्षम है। सिस्टम रेडी। लोगन, कोनल और ऑर्सन की ब्रेन क्रिस्टल पावर एक्सट्रैक्शन शुरू। 150 डीएनए पॉइंट्स उपयोग किए गए। कुल समय, नौकरियां प्रारंभ। होस्ट को बिस्तर पर लेटने की सलाह दी जाती है। सिस्टम की आवाज सुनते ही एरिक का दिमाग जवाब देने लगा। कुछ पल की उलझन के बाद उसकी चेतना धुंधली पड़ने लगी। उसकी आंखें भारी हो गई और वो बेहोश हो गया। पूरी एक्सट्रैक्शन प्रक्रिया 9 घंटे चली। इस दौरान एरिक पूरी तरह अनकॉन्शियस रहा और अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस नहीं कर पाया। जब उसकी आंखें खुली तो अगली सुबह हो चुकी थी। वो छत को देख रहा था। अजीब बात यह थी कि उसे कुछ भी अलग महसूस नहीं हो रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लगता है एक्सट्रैक्शन सफल रही, एरिक ने बुदबुदाया। उसे यकीन था कि उसके पास अब 3 नई पावर्स हैं और चौथी 2 दिनों में मिल जाएगी। फिर भी वो पक्का करना चाहता था। सिस्टम स्टेटस दिखाओ। तुरंत एक नीला सफेद विंडो उसकी नजर के सामने उभरा। होस्ट इंफॉर्मेशन नेम एरिक रोमानो। एज 16 लेवल 6, एक्सपीरियंस 483 डीएनए पॉइंट्स, 20 हेल्थ 440, मैना 370 एट्रीब्यूट्स, स्ट्रेंथ 16, इंटेलिजेंस 7, डेक्सटेरिटी 7 जी 17। Available attribute points. Shuni Biological Supercomputer powers brain crystal manipulation, brain crystal power extraction, DNA manipulation, DNA extraction, DNA strengthening analysis, brain information injector device manipulation. Hosts powers, rapid growth plants, E Sigma 2 E ranked sharpening, E Sigma 1 D ranked mana poisonous spikes, E Sigma 1 E ranked poisonous mana darts, E Sigma 1 D ranked bone manipulation, E Sigma 1 E ranked animal shapeshifting, lock E Sigma 1 E ranked skills, Kyokar hand to hand style, beginner Eric चुपचाप स्क्रीन को देखता रहा। उसके अंदर कुछ बदल चुका था, भले ही वो अभी उसे महसूस न कर पा रहा हो। 2 ई और 1 डी रैंक्ड पावर बुरा नहीं है, एरिक ने अपना स्टेटस देखते हुए कहा। उसे ओर्सन और कोनल की पावर्स की एग्जैक्ट रैंक का अंदाजा नहीं था, लेकिन लोगन की पावर के बारे में वह जानता था। वैसे भी उसे उन 2 लैकीज की ब्रेन क्रिस्टल पावर्स में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी लोगन की पावर काफी काम की थी। उससे वह बिना किसी खतरे के दूर से ही थाइड्स को मार सकता था। चलो इसे ट्राई करते हैं। एरिक ने मैना चैनल करना शुरू किया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि माना उसके ब्रेन क्रिस्टल से निकलकर दिमाग में जा रहा है और वहां से पूरे शरीर में फैल रहा है। इंस्टिंक्टिवली एरिक को पता था कि पॉइजनस मैना डार्ट कैसे बनानी है और उसने वैसा ही किया। उसने अपने हाथ पर जमा हो रहे माना पर ध्यान केंद्रित किया। वह इथेरियल सब्सटेंस उसकी हथेली के ऊपर कंडेंस होने लगा, जब तक कि वह एक पतली सुई जैसी चीज में नहीं बदल गया, करीब 10 सेंटीमीटर लंबी, और उसमें हल्का सा मेटालिक लुक था। रोशनी में पकड़ने पर वह हल्का हरा नीला सा चमक रहा था। एरिक ने सावधानी से डार्ट को पकड़ा, उसे ध्यान से देखा और फिर दीवार की तरफ फेंक दिया, उस जगह को निशाना बनाते हुए जहां वह मारना चाहता था। उसका एम बहुत खराब था, इसलिए वह ठीक से निशाना नहीं लगा पाया, लेकिन इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से उसे एक बात समझ आ गई। डार्ट की पेनिट्रेशन पावर काफी अच्छी थी, लेकिन रॉ स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं थी। एरिक सोचने लगा कि लोगन कैसे लोमलिन की डिफेंसेस को भेद पाया था, जबकि उसकी डार्ट्स कंक्रीट की दीवार में भी काफी अंदर तक घुस जाती थी। तभी डार्ट गायब हो गई, जैसे ही उसे बनाने वाला मैना डिसिपेट हो गया। एरिक ने सोचा, फिर उसने एक और डार्ट बनाई और अपनी दूसरी पावर एक्टिवेट की, शार्पनिंग। वह डार्ट की पियर्सिंग पावर बढ़ाना चाहता था, उसके टिप को और ज्यादा शार्प बनाकर।
जैसे ही डार्ट उसके हाथ में बनी, एरिक ने उसमें मैना चैनल करना शुरू किया। जल्द ही मैना की एक खोद डार्ट के टिप को ढकने लगी, उसे और भी तेज बना दिया। एरिक ने डार्ट को फिर से दीवार की तरफ फेंका। इस बार डार्ट दीवार के अंदर कहीं ज्यादा गहराई तक धंस गई। वाओ, मैं पावर्स को कंबाइन भी कर सकता हूं, एरिक ने उत्साह से कहा। यह तो बहुत अच्छी खबर है। इसके बाद उसने ओरसन से मिली पावर को ट्राई किया। यह बाकी पावर्स से मिलती जुलती भी थी और अलग भी। एरिक ने बस अपनी बाह से कुछ हड्डियां बाहर की ओर निकलने दी। फिर उसने खोनल की पावर ट्राई की, जो उसे सबसे बोरिंग लगी, क्योंकि उससे वह सिर्फ आंशिक रूप से किसी जानवर में शेप शिफ्ट कर सकता था। अगर वह किसी टाइड में शेप शिफ्ट कर पाता, तो ये ज्यादा काम की होती। फिर भी एरिक जानता था कि इन पावर्स के बारे में उसे अभी बहुत कम पता है, और शायद न्यूरल लिंक्स बढ़ने के साथ वह इन्हें और डेवलप कर पाएगा। अब उसके पास 7 न्यूरल लिंक्स थे, और वह फर्क महसूस कर सकता था उस समय से जब से उसे बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर मिला था। माना उसके शरीर में कहीं ज्यादा आसानी से बह रहा था, और वह साफ महसूस कर सकता था कि उसका ब्रेन क्रिस्टल पहले से ज्यादा रॉ माना शरीर में पंप कर रहा है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि पहला न्यूरल लिंक स्टैट्स को इम्प्रूव नहीं करता, या यूं कहें कि उसने डीएनए में ज्यादा बदलाव नहीं किया, सिवाय पावर इस्तेमाल करने की क्षमता देने के। इसलिए उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। एरिक ने घड़ी की तरफ देखा और पाया कि पावर्स टेस्ट करते करते वह स्कूल के लिए लगभग लेट हो चुका था। नई एबिलिटीज मिलने के बावजूद उसका मूड खराब था, क्योंकि 3 लड़कों को मारना मानसिक रूप से उस पर भारी पड़ा था। एरिक रसोई में गया और भरपूर नाश्ता करके डेली क्वेस्ट पूरा कर लिया। हमेशा की तरह नोटिफिकेशन उसकी आंखों के सामने आया, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और कपड़े बदलने चला गया। थोड़ी देर बाद वह घर से निकला, ट्रेन स्टेशन पहुंचा, और एक छोटी सी यात्रा के बाद स्कूल पहुंच गया। सब कुछ हमेशा जैसा ही था। कई छात्र अपनी कारों से उतरकर इमारत की तरफ भाग रहे थे। सबने वही यूनिफॉर्म पहन रखी थी और हाथों में किताबों से भरे टैबलेट्स थे। वे मेन गेट से होकर अंदर जा रहे थे, जहां था कुछ छात्र अपने दोस्तों का इंतजार करते हुए आपस में बातें कर रहे थे। कोई टीचर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन गेट्स खुलते ही बेल बज गई, जो क्लासेस शुरू होने का संकेत था। अजीब बात यह थी कि एम्बर, ग्वेन और फ्लॉयड मेन गेट पर उसका इंतजार नहीं कर रहे थे, जैसा कि वे हाल के दिनों में करने लगे थे। एरिक ने सोचा। उसे पता था कि वह कल ज्यादा पोलाइट नहीं था, लेकिन उस वक्त पैनिक ने उसे घेर लिया था, और वह खुद पर काबू नहीं रख पाया था। जब एरिक अपनी क्लास की तरफ बढ़ रहा था, तो वह प्रिंसिपल हैरिस के ऑफिस के पास से गुजरा और अंदर झांकने में कामयाब रहा। कमरे के अंदर 6 लोग थे। उनके चेहरे परेशान और डरे हुए लग रहे थे। एरिक वहीं खड़ा होकर उन्हें देखने लगा, और फिर उसने उनमें से एक को पहचान लिया। वह लोगन का पिता था। एरिक उसे ज्यादा नहीं देखता था, लेकिन उसे याद था कि कैसे बुली का पिता एक बार लोगन को स्कूल से लेने आया था। एरिक ने अंदाजा लगाया। ध्यान से देखने पर उसे खोनल और ओरसन के पेरेंट्स में भी उनके जैसे फीचर्स नजर आए। खोनल को अपने पिता की अपटर्न्ड नाक मिली थी, छोटी सी, जिसका सिरा ऊपर की ओर था, और उसकी मां की हरी आंखें। ओरसन ने अपने पिता का विशाल शरीर और अपनी मां का अंडाकार चेहरा लिया था। एरिक ने उनके पेरेंट्स को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उनके और उनके बेटों के बीच की समानता इतनी साफ थी कि समझना आसान था कि वे कौन हैं। वह उनकी बातें सुन नहीं पा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही ख्याल था। वे अपने बेटों को ढूंढ रहे थे, जिन्हें आखिरी बार स्कूल में देखा गया था। क्या आप पक्के हैं कि उन्हें आखिरी बार यहीं स्कूल में देखा गया था, मिस्टर हैरिस? लोगन के पिता ने पूछा। हाँ, मैं पक्का हूं। मैंने उनकी टीचर से बात की है। उसने बताया कि वे आखिरी लेसन तक क्लास में थे। उसके बाद वे बाकी क्लासमेट्स के साथ बाहर निकले, लेकिन उसके बाद से हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। किसी ने तो उन्हें क्लास के बाद देखा होगा। ऑर्सन की मां ने चिंता और घबराहट भरी आवाज में कहा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मिस स्मिथ, प्रिंसिपल हैरिस ने जवाब दिया। हम उन्हें ढूंढ लेंगे। इसके बाद वह समूह जल्दी से कमरे से बाहर चला गया, और उनके पीछे 2 पुलिस ऑफिसर्स भी थे। बच्चों की गुमशुदगी के बाद प्रिंसिपल ने पुलिस को बुलाया था। हाल ही में पूरे शहर में क्राइम रेट बढ़ गया था, खासकर थेफ्ट केसेस में। इसलिए पुलिस को एक्स्ट्रा मदद की जरूरत थी। इसी वजह से उन्होंने उन मिलिटरीज को बड़े पैमाने पर रिक्रूट किया था, जिनकी 10 ईयर मैंडेटरी सर्विस हाल ही में खत्म हुई थी।
प्रिंसिपल हैरिस अथॉरिटीज को बुलाने से खुश नहीं था, क्योंकि इससे उसके स्कूल की छवि खराब होती थी। लेकिन वह हालात समझता था और उसने वही किया जो जरूरी था। जैसे ही उसे बच्चों के गायब होने की खबर मिली, उसने सभी को इस बारे में चुप रहने का आदेश दिया, ताकि छात्रों में पैनिक न फैले। फिर भी यह साफ था कि देर सवेर सच्चाई बाहर आ ही जाएगी। लोगन और उसके दोस्त स्कूल में बदनाम थे, सिर्फ कैफेटेरिया में एरिक के साथ हुई भिड़ंत की वजह से ही नहीं, बल्कि बाथरूम इंसिडेंट और लो रैंक छात्रों को बुली करने की अनगिनत अफवाहों की वजह से भी। लेकिन अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। प्रिंसिपल के हिसाब से उनकी गुमशुदगी का बुलिंग से कोई लेना देना नहीं था। आखिर कौन सा 16 साल का छात्र इतना जटिल और खतरनाक काम करेगा? 3 छात्रों को किडनैप या किल करना। ऊपर से ऐसा काम तो सिर्फ लो रैंक छात्र ही कर सकते थे, और उनमें इतनी क्षमता नहीं थी। उसके अनुसार वे तीनों शायद किसी स्ट्रीट थग द्वारा किडनैप या लूट लिए गए थे। कुछ मिनटों बाद, जब कॉप्स और पेरेंट्स स्कूल से चले गए, एरिक अपनी क्लासरूम में दाखिल हुआ। वह लगातार कल की घटनाओं को याद करने की कोशिश कर रहा था, यह सोचते हुए कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं की। उनके लिए तीनों लड़कों की बॉडीज ढूंढना नामुमकिन था, क्योंकि वे बैरियर के बाहर थीं। फिर भी अगर किसी कैमरा ने ट्रेन में उसे बिना मास्क के पकड़ लिया होता, तो वे उनकी गुमशुदगी को उससे जोड़ सकते थे। लेसन्स खत्म होते ही एरिक तुरंत इमारत से बाहर निकला और ट्रेन स्टेशन की तरफ बढ़ गया। वह यह देखने जाना चाहता था कि थाइड्स ने उन 3 प्रिक्स की बॉडीज का क्या किया। यात्रा के दौरान वह काफी नर्वस था। उसे डर था कि कहीं कोई उसे पहचान न ले, लेकिन किस्मत से ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि कई लोगों ने उसे क्यूरियस नजरों से देखा। उसकी घबराहट साफ छलक रही थी। फिर भी टिकट की लाइन में लगने और ट्रेन में चढ़ने के बाद वह आखिरकार शहर के उत्तरी हिस्से में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही एरिक सीधे व्हीट फील्ड्स में घुस गया, खुद को जितना हो सके छुपाने की कोशिश करते हुए, ताकि कोई खिड़की से झांककर उसे देख न ले। वह नहीं चाहता था कि कोई उसके डेस्टिनेशन के बारे में अंदाजा लगा सके, कम से कम तब तक नहीं जब तक वह सुरक्षित पहुंच न जाए। लगभग 10 मिनट तक उन विशाल खेतों में चलने के बाद वह आखिरकार ब्रीच तक पहुंच गया। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। एरिक ने छेद पार किया और कॉर्प्सेस की जगह की ओर बढ़ा। रास्ते में वह पेड़ों और झाड़ियों के बीच से गुजरा। थोड़ी देर चलने के बाद वह वहां पहुंचा, लेकिन बॉडीज वहां नहीं थीं। जमीन पर हर तरफ फुटप्रिंट्स के निशान थे, जो साफ बता रहे थे कि वहां थाइड्स आए थे। सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि कई। खून के धब्बे अभी भी जमीन पर मौजूद थे, खासकर उस जगह जहां उसने उन लड़कों को मारा था। ऐसा लग रहा था कि थाइड्स सारी लाशें अपने साथ ले गए थे। जमीन पर पूर्व दिशा की ओर जाती हुई कुछ ट्रेल्स भी थीं। एरिक ने और ध्यान से तलाश की, ये पक्का करने के लिए कि बॉडीज सच में ले जाई जा चुकी हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ये बात उसे राहत दे रही थी, क्योंकि इसका मतलब था कि थाइड्स उन्हें बहुत दूर तक ले गए थे। यही सोचते हुए वह वापस ब्रिज की तरफ चल पड़ा। अब वहां करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। बॉडीज का कोई निशान नहीं था। इस खोज से उसे राहत तो मिली, लेकिन फिर भी उसके ऊपर एक अजीब सा भारीपन छाया हुआ था। कुछ गलत लग रहा था, हालांकि एरिक खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या। उस दिन जंगल बेहद डरावना लग रहा था। माहौल भारी था और अंडरग्रोथ उदास। उत्तर से चलने वाली हवा आम दिनों से ज्यादा ठंडी लग रही थी, पूरे जंगल में बर्फीली ठंड फैलाती हुई। यहां तक कि पक्षी भी नहीं चहचहा रहे थे। इस जगह पर एक अंधेरी सी ओरा छाई हुई थी, और घने जंगल के अंदर हर आवाज अजीब तरीके से गूंज रही थी। ब्रीच में दाखिल होते ही एरिक मिस्टर फॉक्स के फार्म की ओर बढ़ गया। उसकी भावनाएं पूरी तरह उलझी हुई थीं। वह अब भी इस डर में था कि कहीं पुलिस उसे ढूंढ न ले, जो कि उसके देखे अनुसार पहले ही इस मामले पर काम कर रही थी। चलते चलते उसने खुद को आसपास के नजारों में खो जाने दिया, ताकि थोड़ी देर के लिए मौत और खून से जुड़े ख्यालों से दूर रह सके। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी, वही भारी एहसास और भी जोर से लौट आया। उसकी बेचैनी तेजी से बढ़ने लगी, यहां तक कि वह लगभग असहनीय हो गई। एरिक अचानक रुक गया और जमीन को घूरने लगा। एरिक खुद से भी कन्फ्लिक्टेड था। एक नजरिए से देखें तो उन 3 प्रिक्स को मारने के बाद उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ वह जानता था कि उसने कुछ ऐसा किया है जो माफी के लायक नहीं था। लोगों को मारना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पर गर्व किया जाए। उसके लिए साफ साफ सोचना मुश्किल हो गया था। उसका दिमाग बार बार क्राइम सीन पर लौट जाता।
वो उन 3 थग्स की ब्रूटल हत्या के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। इस बारे में कि कैसे उसने उनके शरीर से ब्रेन क्रिस्टल्स निकाले। काश उसने इतना इम्पल्सिव होकर काम न किया होता। इतना सारा खून। फिर भी इन सब भावनाओं के बावजूद वह चलता रहा। सोचते सोचते एरिक खुद को मिस्टर फॉक्स के फार्म के सामने खड़ा पाया। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसे प्रॉपर्टी के पीछे से कई आवाजें सुनाई दी। एरिक ने सोचा। फिर वह फेंस पार करके घर के चारों ओर घूम गया। वहां उसने कम से कम 5 लोगों को देखा, जिनमें मिस्टर फॉक्स भी शामिल थे, जो खेतों में काम कर रहे थे। बूढ़े आदमी ने एरिक के कदमों की आहट सुनी। उसने मुड़कर देखा और जैसे ही उसने एरिक को पहचाना, खुशी से उसका स्वागत किया। आह एरिक, तुम आखिरकार आ ही गए, मिस्टर फॉक्स ने कहा। हाँ सर, मैं काम शुरू करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, पहले हम खेत साफ कर ले, फिर तुम अपनी मैजिक शुरू करना। और इस तरह एरिक ने बाकी लोगों के काम खत्म होने का इंतजार किया। उसके बाद उसने फिर से अपनी पावर इस्तेमाल की और फसलें हैरान कर देने वाली तेजी से बढ़ने लगीं। नए लोग जब एरिक की एबिलिटी देख रहे थे तो दंग रह गए। वे जानते थे कि मिलिट्रीज में ऐसी चीजों को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, लेकिन फार्म पर यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। वक्त तेजी से गुजर गया और एरिक वापस स्कूल लौटा अपनी डेली ट्रेनिंग शुरू करने के लिए। वह जल्दी ही जिम पहुंच गया, जहां कुछ छात्र पहले से ट्रेनिंग कर रहे थे। उनमें एम्बर, ग्वेन और फ्लॉयड भी थे। एरिक को कल का अपना बर्ताव याद आ गया और उसने तय किया कि उनसे माफी मांगना सही रहेगा। वह धीरे धीरे एम्बर की तरफ बढ़ा, जो स्ट्रेचिंग करते हुए अपने दोस्तों से बात कर रही थी। जब एम्बर ने एरिक को पास आते देखा तो उसके चेहरे पर एक कन्फ्लिक्टेड सी मुस्कान आ गई। वह खुश थी कि एरिक खुद चलकर आया, लेकिन कल उसके रूड व्यवहार की वजह से वह अब भी नाराज थी। एरिक के पास आने तक वह उसे देखती रही। थोड़ी झिझक के साथ एरिक ने कहा, हाय गाइस, कैसे हो? एरिक ने एम्बर को करीब से देखा। ट्रेनिंग अटायर में होने के बावजूद वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके छोटे सीधे लाल बाल उसके सिर के पीछे हल्के से लहराए। जब वह मुस्कुराई तो एरिक को ऐसा लगा जैसे उसका दिल एक पल के लिए रुक गया हो। कुछ सेकंड के लिए उसके सामने खड़ी उस लड़की के सिवा उसे कुछ याद ही नहीं रहा। ओह हाय एरिक, एम्बर ने उसकी आंखों में देखे बिना कहा। कल के बाद यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? ग्वेन ने तंज भरे लहजे में कहा। उस बारे में, एरिक ने कहा, एम्बर की आंखों में देखने की हिम्मत न करते हुए। आई एम सॉरी। सॉरी? तुम्हें लगता है सिर्फ माफी मांग लेने से हम तुम्हारा शिटी एटीट्यूड भूल जाएंगे? ग्वेन गुस्से से बोली। मुझे पता है, कल मैं सच में बहुत बुरा था, लेकिन घर पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और मैं बहुत नर्वस था। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे माफ कर दोगी। तुम। ग्वेन कुछ कहने ही वाली थी कि एम्बर ने उसे रोक दिया। एम्बर की आंखों में एक नरमी थी जब उसने एरिक को देखा। कोई बात नहीं एरिक, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ बहुत ज्यादा गलत कहा हो। हाँ, लेकिन फिर भी वो गलत था। बस कोशिश करना कि ऐसा दोबारा ना हो, ठीक है? एम्बर ने कहा। हाँ। माहौल पहले का ही काफी ऑकवर्ड हो चुका था, इसलिए फ्लोइड ने बात बदल दी। ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, चलो। थोड़ी ही देर में प्रोफेसर मैकेलिस्टर जिम में दाखिल हुए और बिना समय बर्बाद किए अपनी यूजुअल स्पीच शुरू कर दी। आज हम 50 चक्कर लगाकर शुरुआत करेंगे। उसके बाद तुम्हें 2 मिनट का आराम मिलेगा और फिर हम अपना पहला डेली एक्सरसाइज शुरू कर, प्रोफेसर ने कहा। एरिक बाकी सबके साथ जिम के किनारे तक गया और जैसे ही सिग्नल मिला, सब दौड़ पड़े। स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद उसके लिए एक्सरसाइज करना कोई बड़ी बात नहीं रही थी। यह बात प्रोफेसर मैकेलिस्टर ने तुरंत नोटिस कर ली। जब टीचर ने एरिक को ध्यान से देखा, तो उसने महसूस किया कि उसका शरीर पहले से ज्यादा बल्की लग रहा था और मसल्स भी ज्यादा डिफाइंड हो चुकी थी। हालत यहां तक पहुंच गई थी कि एरिक के कपड़े उसे टाइट लगने लगे थे। जाहिर था यह कोई नॉर्मल बदलाव नहीं था, इसलिए टीचर ने उससे सवाल करने का फैसला किया। एरिक, यहां आओ, टीचर ने कहा। एरिक बिना खास उत्साह के उसके पास दौड़कर गया। पास पहुंचते ही प्रोफेसर मैकेलिस्टर बोले, एरिक, क्या तुम घर पर ट्रेनिंग कर रहे हो? हाँ सर, वेट्स इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या कोई प्रॉब्लम है? एरिक ने जवाब दिया। टीचर के चेहरे से एरिक समझ गया कि कुछ गड़बड़ लग रही थी, शायद उसकी अचानक बढ़ी हुई स्ट्रेंथ की वजह से। प्रोफेसर मैकेलिस्टर को शक हुआ। सिर्फ वेट ट्रेनिंग से किसी के मसल्स कुछ ही दिनों में इतने नहीं बढ़ सकते थे। जरूर कुछ और भी चल रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या। सच बता रहे हो? टीचर ने पूछा। हाँ सर।
यहीं एरिक को अपनी ट्रेनिंग याद आई। उसे एहसास हुआ कि वह शायद अपने फिजिकल कैपेबिलिटीज जरूरत से ज्यादा ओपनली दिखा रहा था। हाल ही में मिले लेवल अप्स का असर बहुत साफ दिख रहा था। ठीक है, वापस ट्रेनिंग पर जाओ। टीचर के दिमाग में एक ख्याल आया। हो सकता है एरिक की अवेकनिंग अभी पूरी तरह खत्म न हुई हो, या फिर कुछ ऐसा ही। उसे यकीन नहीं था कि पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं या नहीं, लेकिन यही सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लग रही थी। सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं, एरिक की फाइटिंग स्टाइल भी कुछ ही दिनों में काफी इंप्रूव हो गई थी। ये अच्छी बात थी, लेकिन जिस लेवल तक वह पहुंच चुका था, वहां आमतौर पर पहुंचने में महीनों लगते थे। वह लगभग स्पैरिंग मैचेस के लिए रेडी लग रहा था, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। यह बात उसे प्रिंसिपल हैरिस को रिपोर्ट करनी होगी। प्रिंसिपल इन मामलों में उससे कहीं ज्यादा नॉलेजेबल था। शायद वही समझ पाए कि हो क्या रहा है। एरिक फिर से ट्रेनिंग में लग गया। लैप्स के बाद फिजिकल ट्रेनिंग हुई और फिर उसने अपने मार्शल आर्ट्स मूव्स प्रैक्टिस किए, जबकि बाकी स्टूडेंट्स स्पारिंग कर रहे थे। 1 घंटे बाद फेमिलियर नोटिफिकेशन उसके दिमाग में गूंजी। क्वेस्ट कंप्लीट। अच्छा है, एरिक ने सोचा। मुझे कुछ काम है, प्रोफेसर मैकेलिस्टर ने अचानक कहा। जब तुम लोग निकलो तो जिम का दरवाजा बंद कर देना और सारा इक्विपमेंट अपनी जगह पर रख देना। जी सर, एंडरसन वर्थिंगटन ने जोश में जवाब दिया। उसी वक्त एम्बर एरिक के पास आई। क्या तुम हमारे साथ चलोगे? हम ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में वीडियो गेम्स खेलने जा रहे हैं। सिस्टम आने से पहले एरिक घर पर वीडियो गेम्स खेलता था, लेकिन सिर्फ पुराने वाले जो इंटरनेट पर फ्री मिल जाते थे। आर्केड वह कभी नहीं गया था। उसने क्लासमेट से सुना था कि वहां हर तरह के गेम्स होते हैं, वीआर से लेकर क्लासिक गेम्स तक, कुछ ऐसे भी जिनमें फिजिकल कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करना पड़ता था। ज्यादातर गेम्स अब ब्रेन क्रिस्टल पावर्स पर बेस्ड थे, क्योंकि मिलिट्रीज उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में काफी इन्वॉल्व थी। कुछ गेम्स इस तरह डिजाइन किए गए थे कि रिफ्लेक्सेस अपने आप ट्रेन हो। कुछ एम इंप्रूव करते थे, कुछ कोऑर्डिनेशन और कुछ फाइटिंग एक्सपीरियंस देते थे। वीडियो गेम्स? एरिक ने पूछा। हाँ, एम्बर मुस्कुराते हुए बोली। मॉल के आर्केड में जा रहे हैं। ठीक है, बस जल्दी से शावर ले लूं। शावर के बाद एरिक बाथरूम से बाहर आया, फ्रेश खुशबू के साथ। एम्बर, ग्वेन और फ्लॉयड भी तैयार थे। एरिक कैजुअली एम्बर के पास से गुजरा। वह फूलों जैसी खुशबू कर रही थी। उसकी परफ्यूम से एरिक थोड़ा सा अराउज्ड महसूस करने लगा। वह उसके साथ साथ चलने लगा, हवा में उड़ते उसके बालों की खुशबू में खोता हुआ। एरिक ने एम्बर के लाल बालों को देखा, जो हर कदम के साथ हल्के से लहराते थे। चलते वक्त उनके हिलने की आवाज तक उसे मेस्मराइज कर रही थी। कई स्टूडेंट्स ने उन चारों को साथ चलते देखा। लड़के फ्लॉयड और एरिक से जल रहे थे। उन्हें गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि स्कूल का ट्रैश स्कूल गॉडेस का दोस्त बन गया था। फ्लॉयड को वे एक्सेप्ट कर सकते थे। वह टॉप स्टूडेंट्स में से था और दिखने में भी अच्छा था। लेकिन एरिक को नहीं, जो उनके हिसाब से हर मायने में एवरेज था। उसका लुक बुरा नहीं था, लेकिन दूसरे लड़के जैसा भी नहीं। लगभग 10 मिनट बाद वे मॉल पहुंचे। एम्बर के ड्राइवर ने कार पार्क की और चारों अंदर चले गए। मॉल के लंबे कॉरिडोर से गुजरते हुए वे एक एंट्रेंस के सामने रुके, जहां ऊपर लिखा था आर्केड। हॉलवेज में रेस्टोरेंट्स के भी कई साइंस लगे थे। आर्केड के अंदर जाते ही वे एक विशाल कमरे में पहुंचे, जो मशीन से भरा हुआ था। अंदर दर्जनों टीनेजर्स अलग अलग गेम्स खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों कंसोल से भरा कोई जायंट रूम हो। कुछ मशीन्स इंटरनेट से जुड़ी थी और मूवीज व सीरीज स्ट्रीम कर रही थी। दीवारों पर पॉपुलर शोज और फिल्म्स के पोस्टर्स लगे थे। फ्लॉयड ने एंट्रेंस के पास एक मशीन की तरफ इशारा किया। वहां सबसे पहले वही खेलते हैं। एम्बर ने सिर हिलाया। हाँ। हे एरिक, तुमने कभी ये गेम खेला है? कभी नहीं। कभी नहीं? नहीं, मेरे पास यहां आकर गेम्स खेलने के पैसे नहीं थे, एरिक ने उदास होकर कहा। एम्बर, ग्वेन और फ्लॉयड ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी और ग्रह से आया हो। ये गेम किस बारे में है? एरिक ने पूछा। स्पीड और रिफ्लेक्सेस पर बेस्ड है, ग्वेन ने समझाया। मशीन तुम पर अटैक करेगी और तुम्हें ब्राउन टारगेट्स दिखेंगे। मौका मिले तो उन्हें हिट करना होता है। इंटरेस्टिंग लग रहा है, बोला। मैं दिखाती हूं कैसे खेलते हैं, ग्वेन ने कहा। उसने कॉइन डाला और मशीन चलने लगी। कई गमी फिस्ट प्लेयर पर पंच मारने की कोशिश करते थे। डिफिकल्टी बढ़ने के साथ स्पीड भी बढ़ती जाती थी। अगर प्लेयर को पंच लग जाता तो पॉइंट्स कटते। 5 बार हिट हुए तो एलिमिनेशन। मैच के अंत में स्कोर मिलता, हिट्स और सर्वाइव किए गए टाइम के हिसाब से। ग्वेन ने खेलकर दिखाया। वह काफी अच्छी थी
और उसने मशीन पर मौजूद पुराने स्कोर से भी ज्यादा स्कोर कर लिया। एरिक ने भी ट्राई किया, लेकिन वह ग्वेन जितना अच्छा नहीं था। उसकी फिजिकल ट्रेनिंग उससे बेहतर थी। फिर चारों ने रेसिंग, शूटिंग, फाइटिंग जैसे और भी गेम्स खेले। इस दौरान एरिक ने काफी कुछ सीखा। उदाहरण के लिए फ्लॉयड को वीडियो गेम्स की बहुत जानकारी थी। उसने उन्हें कुछ नए गेम्स दिखाए। उसने एरिक को एक गेम के बारे में बताया जिसमें लोग स्पेसशिप्स उड़ाते हैं और एलियंस पर शूट करते हैं, ब्लेड हंट। एरिक ने उसका नाम पहले सुना था, लेकिन कभी समझ नहीं पाया था कि कोई ऐसा गेम क्यों खेलेगा। इसी तरह आर्केड का समय खत्म हो गया। एरिक खुश था। उसे नॉर्मल लाइफ की एक झलक मिली थी। बाकी सब भी सेटिस्फाइड लग रहे थे, खासकर फ्लोइड। जब वे पार्किंग एरिया लौटे तो एम्बर का ड्राइवर कार लेकर वापस आ चुका था। प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर प्रोफेसर मैकेलिस्टर और प्रिंसिपल हैरिस एरिक को लेकर बातचीत कर रहे थे। प्रिंसिपल हैरिस हमेशा की तरह अपनी डेस्क के पीछे बैठे थे। चेहरे पर गहरी सोच साफ दिख रही थी। वहीं प्रोफेसर मैकेलिस्टर उनके सामने खड़े थे। उनका एक्सप्रेशन काफी सीरियस था। तो तुम कहना चाह रहे हो कि उस बच्चे की अवेकनिंग अभी पूरी नहीं हुई है? प्रिंसिपल हैरिस ने पूछा। जी हाँ, सर। उसकी स्ट्रेंथ अभी भी बढ़ रही है, जितनी नहीं बढ़नी चाहिए। इसके अलावा उसकी लर्निंग एबिलिटी बिल्कुल ही चार्ट से बाहर जा रही है। मुझे ऐसे केसेस की जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यही हो रहा है। शायद एरिक खुद भी इससे पूरी तरह अवेयर नहीं है, प्रोफेसर मैकेलिस्टर ने कहा। अगर ऐसा है जैसा तुम कह रहे हो, तो हम किसी अनप्रेसिडेंटेड चीज के सामने खड़े हैं, और ऐसे में हमें बहुत सावधान रहना होगा कि आगे क्या कदम उठाया जाए। तो आप? हाँ, प्रिंसिपल ने बीच में ही कहा, मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि इस बारे में मिलिटरीज को कुछ भी न बताया जाए। यह सुनकर प्रोफेसर मैकेलिस्टर साफ तौर पर नाराज हो गए। लेकिन क्यों? अगर ऐसा कुछ सच है तो हमें इसकी वजह समझनी चाहिए, और इसका मतलब होगा एरिक को एक लैब रैट बना देना। प्रिंसिपल हैरिस ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। दोनों की बातचीत चलती रही। प्रोफेसर मैकेलिस्टर ने काफी देर तक प्रिंसिपल हैरिस को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल अपने फैसले पर अड़े रहे। एरिक के बारे में कुछ भी बाहर नहीं जाना चाहिए था। प्रोफेसर मैकेलिस्टर के कमरे से निकलने के बाद प्रिंसिपल हैरिस खड़े हुए। दीवार पर टंगे पूरे कॉन्टिनेंट के बड़े से नक्शे के सामने जाकर वह कई मिनट तक उसे देखते रहे। फिर वापस अपनी डेस्क पर लौट आए। तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था, फ्लॉयड हंसते हुए एरिक से कह रहा था, ग्वेन के बारे में एक मजेदार किस्सा सुनाते हुए, जिससे ग्वेन बुरी तरह चिढ़ गई थी। तुम्हारी कहानी खत्म हुई या नहीं? ग्वेन ने छुजलाकर पूछा। अभी नहीं। ये वो पल थे जो एरिक ने अपनी फेक अवेकनिंग से पहले कभी नहीं जिए थे। वह इन्हें काफी प्रेशियस मानता था, लेकिन अपने अंदर की बेचैनी की वजह से वह इन्हें पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पा रहा था। कॉनॉल, ऑर्सन और लोगन को मारना उसे एक अजीब तरह से अच्छा लगा था, लेकिन उसी के साथ उसे ऐसा भी महसूस हुआ जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। पिछले हफ्ते तक वह सातवें आसमान पर था। उसकी डिफॉर्मिटी ठीक हो गई थी, उसे एक नई पावर मिल गई थी, और उसे लगा था कि अब सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन उन तीन बुलीज ने उसे चैन से जीने नहीं दिया, और हालात उसे ऐसे एक्सट्रीम कदम उठाने पर मजबूर कर गए। एरिक, सुन रहे हो? फ्लॉयड ने पूछा। हाँ, सॉरी, एरिक ने हल्की सी शर्मिंदगी के साथ कहा। मैं पूछना तो नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा हो। कुछ हुआ है? फ्लॉयड ने पूछा। एरिक चौंक गया। वह सच्चाई नहीं बता सकता था कि उसने तीन लोगों को मार दिया था। उसने जबरदस्ती मुस्कान ओढ़ ली और कहा, कुछ भी नहीं। अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है। वैसे मैं ये कह रहा था। फ्लॉयड फिर से ग्वेन की एम्बैरेसिंग कहानियां सुनाने लगा। करीब 1 घंटे तक वह ग्वेन को चिढ़ाता रहा, और फिर चारों दोस्त पास के एक लोकल रेस्टोरेंट में खाने चले गए। ग्वेन साफ तौर पर फ्लॉयड से नाराज थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे ग्वेन को चिढ़ाना बहुत मजेदार लगता था। शाम पलक झपकते ही गुजर गई। एरिक ने काफी मजा किया और कुछ घंटों के लिए अपनी परेशानियां भूल सका। वे सब इधर उधर की बातें करते रहे, टीचर्स और स्टूडेंट्स पर मजाक उड़ाते रहे, यहां तक कि नथानियल और एंडरसन को भी नहीं छोड़ा। एरिक को यह सब सुनकर हंसी आ रही थी। नथानियल और एंडरसन दोनों ही कैंपस पर सीरियस और डिसिप्लिन्ड लोगों के तौर पर जाने जाते थे। वे प्रैंक या जोक्स के लिए फेमस नहीं थे, लेकिन एक चीज थी जो वे बखूबी जानते थे, डर पैदा करना। उन्हें सिली मिस्टेक्स करते हुए इमेजिन करना एरिक के लिए किसी फ्रेश हवा के झोंके जैसा था। डिनर के बाद एम्बर ने सबको घर छोड़ा
और आखिर में सिर्फ एरिक रह गया। गाड़ी चलते वक्त एम्बर ने कार की सीलिंग खोल दी। ऊपर तारों से भरा आसमान था और चमकता हुआ चांद शहर को रोशनी में नहला रहा था। वह नजारा बेहद खूबसूरत था। रास्ते भर वे हल्की फुल्की बातें करते रहे और एरिक की नजर बार बार एम्बर पर टिक जाती थी। एरिक को उस रेड हेयर्ड लड़की की ओर खिंचाव महसूस हो रहा था, लेकिन उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वह उसे डेट के लिए पूछ सके। उसने कभी किसी से ऐसा नहीं पूछा था और उसे पता भी नहीं था कि शुरुआत कहाँ से करें। ऊपर से उसे पूरा यकीन था कि एम्बर को उसमें कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी वह अक्सर सोचता था कि इतनी पावरफुल लड़की उसकी दोस्त कैसे बन गई। इन सब बातों के बावजूद उस रात एरिक को लगा कि ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसे एक अच्छी शाम ठीक न कर सके। वह उस पल को पूरी तरह जी रहा था। करीब 11 बजे रात को वे पहुंच गए। एरिक ने एम्बर को धन्यवाद कहा, गाड़ी से उतरा और अकेले अपने अंधेरे अपार्टमेंट बिल्डिंग में चला गया। दोस्तों के साथ बिताया गया वह वक्त उसका मन काफी हल्का कर गया था। हाँ, उसने कुछ लोगों को मारा था, लेकिन वे इसके लायक थे। जो भी आगे होने वाला था, उसने तय कर लिया था कि वह उसे अपनाएगा। अब वह किसी से डरने वाला नहीं था और न ही किसी को खुद का फायदा उठाने देगा। उसका फ्यूचर अब सिर्फ उज्जवल हो सकता था और उसने इसी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। घर पहुंचकर एरिक कुछ देर काउच पर ढेर हो गया। उसके पास अभी लगभग 1 घंटा था, इसलिए उसने न्यूरल लिंक की ट्रेनिंग करने का फैसला किया। वह लोटस पोजीशन में बैठ गया और माना को अपने ब्रेन क्रिस्टल की ओर और वहां से फ्लो कराने लगा। उसने गहरी सांसें ली और अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान केंद्रित किया। शांत रहो, धीरे धीरे, उसने खुद से कहा। एरिक ने पूरी ताकत से ध्यान लगाया। आंखें बंद करके उसने माना को अपने पूरे शरीर में बहने दिया। आखिरकार वह न्यूरल लिंक्स एस्टैब्लिश करने का तरीका समझने लगा। अब यह प्रक्रिया उसे पहले से कहीं आसान लग रही थी, खासकर डिफॉर्मिटी ठीक होने के बाद। कुछ घंटे बिना किसी बड़ी दिक्कत के गुजर गए और उसे खुशी हुई कि सब कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा था। फिर भी उसे लगा कि यह सब बहुत स्लो है। इतने सारे ब्रेन क्रिस्टल पावर्स और इतने सारे न्यूरल लिंक्स, उसे इसे तेज करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। एरिक ने बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर से पूछा। आंसर: होस्ट की लिंक एस्टैब्लिशिंग प्रोसीजर में कई क्रिटिकल इश्यूज पाए गए हैं। बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर इन्हें ठीक करने की कोशिश कर सकता है। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी। अनुमान है कि 30 डीएनए पॉइंट्स की जरूरत होगी। एरिक ने पूछा, क्या तुम मेरे डीएनए पॉइंट्स इस्तेमाल कर सकते हो? आंसर: सही है। प्रक्रिया शुरू करने के लिए 30 डीएनए पॉइंट्स चाहिए। 40 डीएनए पॉइंट्स डिटेक्ट किए गए हैं। क्या आप इन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं? एरिक ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद सिस्टम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। एरिक बिस्तर पर लेट गया, आंखें बंद की और पूरे दिन के बारे में सोचने लगा। उसकी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा था, उसके बावजूद वह खुद को खुश महसूस कर रहा था। काश उसे ऐसे दिन पहले भी नसीब हुए होते। वह जानता था कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वह यही सोचता रहा कि अगर उसकी जिंदगी अब तक कुछ और होती, तो शायद सब अलग होता। लोगन रीड, कोनल प्राइस और ओरसन स्मिथ। लोगन की मां ने पुलिस ऑफिसर से कहा, ये कब से लापता हैं? ऑफिसर ने पूछा। 2 दिन हो गए हैं। आखिरी बार उन्हें स्कूल में देखा गया था। ठीक है मैम। आदमी ने ड्रॉर से एक टैबलेट निकाला और बोला, पुलिस की लीगल मदद मांगने के लिए आपको इन पेपर्स पर साइन करने होंगे। तीनों लापता टीनेजर्स के पेरेंट्स एक साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे थे ताकि अपने बच्चों को ढूंढने में मदद मिल सके। जिन ऑफिसर्स ने उनसे पूछताछ की, उन्होंने बताया कि यह जानना बहुत जरूरी है कि बच्चों ने गायब होने से पहले किसी सस्पिशियस चीज की शिकायत की थी या नहीं। लेकिन किसी भी टीनेजर ने अपने पेरेंट्स को किसी तरह की परेशानी के बारे में कुछ नहीं बताया था, इसलिए उनके पास कोई ठोस क्लू नहीं था। कैफेटेरिया वाले इंसिडेंट की बात करें तो लोगन को एरिक से लगी चोट पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी, इसलिए उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। कोनल और ओरसन के शरीर पर तो कोई विजिबल वुंड्स भी नहीं थे। इसके अलावा न्यू अलेक्जेंड्रिया में मिसिंग चिल्ड्रन की रिपोर्ट्स नई बात नहीं थी। यह शहर जो भारी तौर पर मिलिटराइज था, फिर भी हाई क्राइम रेट के लिए जाना जाता था। टीनेजर्स या छोटे बच्चों का गायब होना यहां लगभग रोज की बात थी। पुलिस ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वे पहले से ही कई और मिसिंग केसेस पर काम कर रहे थे। फिर भी उन्होंने पेरेंट्स को भरोसा दिलाया कि कम से कम सर्च के लिए कुछ लोग भेजे जाएंगे।
पेपर साइन करने के बाद पेरेंट्स से कहा गया कि वे घर जाएं और पुलिस की तरफ से जल्द ही कोई खबर मिलेगी। छहों पेरेंट्स भारी मन से पुलिस स्टेशन से बाहर निकले। वह बिल्डिंग 4 मंजिला थी, ऊपर एक एटिक के साथ, और न्यू अलेक्जेंड्रिया के एक कोने में स्थित थी, जो कभी एक पुराने पार्क का हिस्सा हुआ करता था। उसके आसपास का पूरा इलाका अब मिलिट्री बैरक्स में बदल चुका था, लेकिन यह बिल्डिंग किसी तरह उस फेट से बच गई थी। यह सड़क के नॉर्थ साइड में एक काफी बड़े प्लॉट पर खड़ी थी और इसके चारों ओर सजावट के लिए कई पेड़ लगे थे, ज्यादातर ओक, एल्म और चेस्टनट। अब हम क्या करें? लोगन की मां ने पूछा। हम कुछ नहीं कर सकते, लोगन के पिता ने कहा। हमें बस इंतजार करना होगा कि पुलिस सर्च शुरू करे और हमें कोई खबर दे। लेकिन हमारे पास समय नहीं है, ओरसन के पिता बोले। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हमारे बेटे मर भी सकते हैं। अगर वो अभी जिंदा हो, कोनेल की मां ने थके हुए स्वर में कहा। ऐसी बातें मत कहो मैरी, लोगन के पिता ने टोका। देखो, जितना दर्दनाक ये कहना है, उतना ही सच भी है, कोनेल की मां बोली। हम सब जानते हैं कि न्यू अलेक्जेंड्रिया में जब टीनेजर्स गायब होते हैं, तो ज्यादातर मामलों में वो पहले ही मर चुके होते हैं। खुद से झूठ बोलने का क्या फायदा? तुम पक्के तौर पर नहीं जानती कि वो मर चुके हैं, लोगन की मां ने जवाब दिया। हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, लूसी सही कह रही है। अगले दिन एरिक एकदम रिलैक्स्ड महसूस करते हुए उठा। पूरी रात उसने अच्छी नींद ली थी और उसका मन हल्का था। उसने घड़ी देखी, लगभग 8 बजे थे। समय बर्बाद न करते हुए वह स्कूल के लिए तैयार होने लगा। शावर लिया और ब्रेकफास्ट करके अपनी पहली डेली क्वेस्ट पूरी की। स्टेटस, एरिक ने कहा। तुरंत उसके सामने उसकी सारी इंफॉर्मेशन और पावर्स दिखाई देने लगी। होस्ट इंफॉर्मेशन नेम एरिक रोमनो, एज 16 लेवल 6, एक्सपीरियंस 513 डीएनए पॉइंट्स, 50 हेल्थ, 440 मैना, 370 एट्रीब्यूट्स, स्ट्रेंथ 16, इंटेलिजेंस 7, डेक्सटेरिटी 7, एनर्जी 17, available attribute points, शून्य powers, biological supercomputer powers, brain crystal manipulation, ब्रेन क्रिस्टल पावर एक्सट्रैक्शन होस्ट को ब्रेन क्रिस्टल अब्सॉर्ब करने देता है, जिससे वह उसके अंदर मौजूद पावर हासिल कर सकता है। नोट, बॉडी को पावर इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए डीएनए बदलना जरूरी है। डीएनए एक्सट्रैक्शन देखें। लॉक्ड ब्रेन क्रिस्टल पावर स्ट्रेंथनिंग एनर्जी एट्रीब्यूट पॉइंट्स बढ़ाने की अनुमति देता है। डीएनए मैनिपुलेशन, डीएनए एक्सट्रैक्शन फॉरेन डीएनए अब्सॉर्ब करने देता है, जिससे होस्ट उसे अपने शरीर में रेप्लिकेट कर सके। नोट, डीएनए बदलना एक स्लो प्रोसेस है और नई ब्रेन क्रिस्टल पावर्स के लिए जरूरी है। लॉक्ड डीएनए स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और डेक्सटेरिटी एट्रीब्यूट पॉइंट्स बढ़ाने देता है। एनालिसिस होस्ट को सराउंडिंग्स, प्लांट्स, क्रीचर्स और ओर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ब्रेन इंफॉर्मेशन इंजेक्टर टच के जरिए इंफॉर्मेशन सीधे ब्रेन में इंजेक्ट करता है। डिवाइस मैनिपुलेशन टच के जरिए इलेक्ट्रॉनिक और मैना ड्रिवन डिवाइसेस को मैनिपुलेट करने देता है। होस्ट्स पावर्स, रैपिड ग्रोथ प्लांट्स, सिग्मा 2 ई रैंक्ड, प्लांट्स को तेजी से ग्रो करने देता है। शार्पनिंग 1 डी रैंक्ड, मैना की मात्रा के हिसाब से चीजों या बॉडी पार्ट्स को तेज बनाता है। मैना पॉइजनस स्पाइक्स, सिग्मा 1 ई रैंक्ड, यूजर की पीठ से इथेरियल पॉइजनस स्पाइक्स बनाता है। टॉक्सिसिटी और लेंथ मैना पर डिपेंड करती है। पॉइजनस माना डार्ट्स, सिग्मा 1 डी रैंक्ड, पॉइजनस मैना डार्ट्स बनाता है जिनकी लिथैलिटी इंजेक्टेड मैना पर डिपेंड करती है। बोन मैनिपुलेशन 1 ई रैंक्ड, बोन्स को मैनिपुलेट, एनलार्ज, डेंस, शेप और शार्पन करने देता है। एनिमल शेप शिफ्टिंग इस सिग्मा 1 ई रैंक्ड बॉडी को एनिमल में शेप शिफ्ट करता है। एनिमल्स को अब्सॉर्ब करना जरूरी है ताकि उनकी शेप शिफ्टिंग अनलॉक हो सके। स्किल्स, क्योकार हैंड टू हैंड स्टाइल बिगिनर, फ्रांस में डेवलप की गई मिलिट्री फाइटिंग स्टाइल। गुड, एरिक ने स्टेटस देखते हुए कहा। बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर मिलने के बाद वह काफी इंप्रूव कर चुका था। लगता है अब मेरे पास लोमालिन की ब्रेन क्रिस्टल पावर अनलॉक करने के लिए काफी डीएनए पॉइंट्स हैं। हमेशा की तरह उसे यह एक्सट्रैक्शन रात में ही करनी होगी, जब स्कूल या काम की टेंशन ना हो। इसके बाद एरिक घर से निकला और रोज की तरह ट्रेन स्टेशन की तरफ बढ़ गया। दिन काफी गर्म था और स्कूल पहुंचते पहुंचते उसे पसीना आ गया। ट्रेन स्टेशन की छोटी सी जर्नी और उससे भी छोटी स्कूल तक की राइड के बाद वह मेन गेट पर पहुंचा। कई स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी अंदर जा रहे थे, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। गेट के पास कई पुलिस ऑफिसर स्टूडेंट्स से सवाल जवाब कर रहे थे। फक, एरिक के मुंह से निकला। वह गेट से अंदर घुसा और कोशिश करने लगा कि किसी की नजर उस पर न पड़े।
उसने पुलिस ऑफिसर से दूरी बनाए रखी, लेकिन तभी उसने सुना, वही है। स्टूडेंट्स में से किसी ने चिल्लाते हुए एरिक की तरफ इशारा किया। शिट! पुलिस ऑफिसर्स धीरे-धीरे एरिक की ओर बढ़ने लगे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके दिमाग में अनगिनत ख्याल घूमने लगे। क्या मैं पकड़ा गया हूं? क्या कैमरास से मुझे पहचान लिया गया? हर कदम के साथ उसकी एंजाइटी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार जो अनंत सा लग रहा था, वह पल खत्म हुआ। पुलिस उसके पास पहुंच गई। एक ऑफिसर ने उसका हाथ पकड़कर उसे भीड़ से अलग किया और पूछा, तुम्हारा नाम एरिक रोमनो है? जी, सर। हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। क्या तुम हमें थोड़ा सा समय दोगे? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस एरिक को एक ज्यादा सिक्लूडेड जगह पर ले गई ताकि आराम से पूछताछ की जा सके। एरिक ने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह सिचुएशन बिल्कुल आसान नहीं थी। क्या तुम लोगन रीड नाम के लड़के को जानते हो? पुलिस ऑफिसर ने पूछा। हाँ, जानता हूं, एरिक ने जवाब दिया। क्या तुमने उसे स्कूल के बाहर या शहर में कहीं और देखा है? ऑफिसर ने आगे पूछा। एरिक ने नीचे देखा और सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हम ज्यादा क्लोज नहीं थे। पुलिस ऑफिसर ने उससे और कई सवाल पूछे। कम से कम 10 मिनट तक पूछताछ चलती रही। वह लगातार एरिक के एक्सप्रेशंस को ध्यान से देख रहा था। फिर उसने एक खास सवाल फेंका, जैसे किसी रिएक्शन का इंतजार हो। क्या तुम्हें पता है कि वह और उसके दो दोस्त कोनल प्राइस और ओरसन स्मिथ गायब हो गए हैं? एरिक जानता था कि वे कैफेटेरिया वाले इंसिडेंट की वजह से ही उसके पास आए थे, इसलिए उसने खुद को जितना हो सके उतना शांत रखा। नहीं सर, मुझे नहीं पता था, एरिक ने कहा। क्या तुमने उन्हें थर्सडे की सुबह करीब 2 बजे के आसपास देखा था? आखिरी बार उसी समय उन्हें देखा गया था, पुलिस ऑफिसर ने कहा। नहीं सर, जैसा मैंने कहा, हम क्लोज नहीं थे। पुलिसमैन ने एक फोल्डर से कुछ पेपर्स निकाले जिनमें तीनों लापता लड़कों से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन थी। जैसे ही एरिक ने उन कागजों पर लिखा देखा, वह नर्वस हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे पसीना आने लगा। पुलिस ऑफिसर ने यह सब बड़े ध्यान से नोटिस किया। हमें पता चला है कि कैफेटेरिया में तुम्हारी उन 3 स्टूडेंट्स से फाइट हुई थी। कई स्टूडेंट्स ने इस इंसिडेंट की रिपोर्ट दी है। हम चाहते हैं कि तुम उस दिन क्या हुआ वो हमें बताओ। मुझे ठीक से याद नहीं, एरिक ने कहा, कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करते हुए। बस इतना याद है कि वो बिना वजह मुझ पर गुस्सा हो गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कैफेटेरिया में था। उन्होंने मुझे वहां से निकालने की कोशिश की और फिर वही हुआ जो सब जानते हैं। फाइल को दोबारा पढ़ने के बाद पुलिस ऑफिसर ने पेपर्स वापस फोल्डर में रखे और अपने खलीग को दे दिए। क्या आपके पास इस बात का कोई क्लू है कि उनके साथ क्या हुआ? एरिक ने पूछा। ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, यंग मैन, ऑफिसर ने कहा। बस इतना कह सकता हूं कि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं और ढूंढ निकालेंगे। इसके बाद ऑफिसर्स ने एरिक से बुलिंग और रोजमर्रा की परेशानियों के बारे में और सवाल पूछे जो उसे उन 3 लड़कों की वजह से झेलनी पड़ी थी। जब पुलिस ऑफिसर्स मेन गेट की तरफ लौटने लगे, तो उनमें से एक एरिक की ओर मुड़ा और बोला, अगर तुम्हें उनकी तलाश में हमारी मदद करनी हो, तो हमसे कांटेक्ट करना। जो भी तुम्हें याद आए वो मददगार हो सकता है। अगर कुछ भी याद आए तो हेजिटेट मत करना। ठीक है, जरूर, एरिक ने जवाब दिया। पुलिस ऑफिसर्स कैंपस में ही रुक गए और बाकी स्टूडेंट्स से भी सवाल पूछने लगे। जो कुछ उन्होंने तीनों लड़कों के बारे में जाना, वह काफी भयानक था। कई स्टूडेंट्स ने बताया कि लोगन, कोनल और ओरसन बुलीज थे। एरिक अकेला नहीं था जिसे उन्होंने पीटा था, लेकिन वह उनका सबसे आसान टारगेट था। कम से कम 1 दर्जन और टीनेजर्स भी उन्हीं की वजह से परेशान हुए थे और उन्होंने सब कुछ पुलिस को बता दिया। लोगन, कोनल और ओरसन उन्हें मारते थे, घायल करते थे और बार बार उनसे चीजें चुराते थे। कई बार उन्होंने स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया था। सिर्फ एरिक ही नहीं, और भी कई थे। अगर किसी ने शिकायत करने की कोशिश की तो वे धमकियां देते थे। यह सब कई सालों से चल रहा था। जो पिक्चर पुलिस ऑफिसर्स के सामने आई वह आम नहीं थी। स्कूल के अंदर उन तीनों को काफी नफरत की नजर से देखा जाता था। फिर भी ऑफिसर्स जानते थे कि ऐसी चीजें पूरे शहर में होती रहती हैं। वे दोनों पुलिसमैन अक्सर ऐसे मामलों की जांच करते थे। ज्यादातर बार परपेट्रेटर्स को कोई सजा नहीं मिलती थी, क्योंकि लोग इन्हें माइनर इश्यूज मानते थे। कुछ पेरेंट्स तो इस वायलेंस को इनकरेज भी करते थे, ताकि उनके बेटे टफ बने जब वे फ्यूचर में मिलिट्री में जाएं। पुलिस ऑफिसर्स की समझ में कोनल,
ऑर्सन और लोगन दूसरों पर पावर जमाने और डर फैलाने में मजा लेते थे। इन बच्चों को देखो, उनमें से एक ऑफिसर ने कहा। छोटी छोटी फाइट्स भी जेल नहीं पाते। क्या तुम्हें लगता है कि ये मिलिट्री में कुछ कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता, दूसरे ने जवाब दिया। अगर ये सिंपल बुलीज के खिलाफ भी खड़े नहीं हो सके तो आर्मी में क्या करेंगे? एनलिस्ट होते ही शायद बुरी तरह मर जाएंगे। हाँ, सही कह रहे हो। इन बच्चों को टफ बनना चाहिए। जब मैं स्कूल में था तब भी ऐसी चीजें रोज होती थी और तब किसी को शिकायत करते नहीं देखा, पहला ऑफिसर बोला। अगर एरिक ये सुन लेता तो उसे घिन आ जाती। पुलिस भी इस नेशन की बाकी चीजों की तरह अंदर से सड़ी हुई थी। तुम सही हो। दोनों ऑफिसर स्टूडेंट्स के बारे में बातें करते रहे जब तक वे कैंपस से बाहर नहीं निकल गए। बाहर पहुंचकर वे दूसरी जगह गए जहां कुछ और डिटेक्टिव से मिलने वाले थे। पुलिस ऑफिसर से अलग होने के बाद एरिक सीधे क्लास की तरफ गया। आज उसकी न्यूरल लिंक एस्टैब्लिशिंग क्लास थी, प्रोफेसर ओलेरी के साथ। जैसे ही वह क्लासरूम पहुंचा, कई स्टूडेंट्स उसे देखने लगे। 2 हफ्तों में एरिक की जिंदगी काफी बदल चुकी थी और यह बदलाव साफ दिख रहा था। उसने लोगन से फाइट की थी। इतना ही नहीं, उसने क्लास के दौरान अपने क्लासमेट्स का सामना भी किया था। पहले उसमें ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं थी। स्टूडेंट्स ने उसके फिजिकल चेंजेस भी नोटिस किए। वह पहले से ज्यादा मस्कुलर हो गया था और उसकी ऑरा भी बदल गई थी, पहले से कहीं ज्यादा कोल्ड। एरिक का लोगों को जवाब देना या पलटकर बोलना उसकी आदत नहीं थी, इसलिए यह चेंज सबको चौंका रहा था। गुड मॉर्निंग गाइस, मिस्टर ओलिरी ने कहा। हेलो सर, स्टूडेंट्स ने जवाब दिया। टीचर ने आराम से अपनी जगह ली, फिर कुछ देर बाद बोले, तो आज हमारी प्रैक्टिस लेसन शुरू करें? यस सर, स्टूडेंट्स ने एक साथ कहा और फिर सभी ने अपने ब्रेन क्रिस्टल्स के जरिए मैना चैनल करना शुरू कर दिया। एरिक ने पूरा ध्यान अपने काम पर लगाया। ब्रेन क्रिस्टल से माना मैनिपुलेट करके न्यूरल लिंक बनाना आसान नहीं था। फिर भी वह लगातार कोशिश करता रहा। माना को क्रिस्टल से ब्रेन की तरफ फ्लो करते हुए उसने महसूस किया कि कुछ अलग हो रहा है। ये वही फीलिंग थी जो उसे पिछली बार नया न्यूरल लिंक मिलने पर हुई थी, और यह सेंसेशन धीरे धीरे और मजबूत हो रही थी। जब यह फीलिंग अपने पीक पर पहुंची तो एरिक ने माना का एक जोरदार सर्ज महसूस किया जो तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गया। कुछ पलों बाद यह सेंसेशन शांत हो गई और उसे एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हुआ, जैसे उसके अंदर कुछ नया जुड़ गया हो। मैंने एक और बना लिया, एक न्यूरल लिंक, एरिक ने मन ही मन सोचा। वह यह बात किसी को बता नहीं सकता था क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह लिंक किस पावर से जुड़ा है, और वह कोई अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहता था। प्रॉब्लम यह थी कि टीचर उससे नई न्यूरल लिंक की पावर दिखाने को कह सकता था और वह शार्पनिंग पावर से जुड़ी होनी चाहिए थी। इसका मतलब था कि पावर में कुछ ऐसा बदलाव होना चाहिए जो साफ दिखे। एरिक इस नए लिंक से खुश तो था, लेकिन पहली बार जैसी खुशी नहीं थी। फिर भी वह जानता था कि उसे 3 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल चुके थे, डेक्सटेरिटी, इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ में, और यह अपने आप में काफी था। थोड़ी देर और मैना चैनल करने के बाद एरिक को समझ आया कि यह नया न्यूरल लिंक उस पावर से जुड़ा था जो उसे लोगन से मिली थी। हैरानी की बात यह थी कि उसने इसे इतनी जल्दी डेवलप कर लिया था। उसे ठीक से नहीं पता था कि यह सब कैसे काम करता है, इसलिए उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और बस चुपचाप आगे बढ़ता रहा। अपने बेडरूम जा रही हूँ डैड, एमिली ने कहा। वह उसके फादर और मदर अपने मैंशन में लंच कर रहे थे। जगह बेहद विशाल थी और किसी एंशियंट बिल्डिंग की तरह बनी हुई थी, कई जायंट रूम्स और अनगिनत छोटे छोटे चेम्बर्स के साथ। यह मैंशन सदियों पुराने एक मिडिवल पैलेस की जगह पर बना था। हालांकि पुरानी स्टोन स्ट्रक्चर आज भी अपने नाम हार्मनी एस्टेट से जानी जाती थी, लेकिन उसे जड़ों से दोबारा बनाया गया था और अब वह एक मॉडर्न फोर्ट्रेस जैसा दिखता था। ओरिजिनल पैलेस से बाहर की तरफ सालों में कई नए हिस्से जोड़े गए थे। पूरी बिल्डिंग किसी दूसरी दुनिया की आर्किटेक्चरल ड्रीमलैंड लगती थी। डोम्स, वॉल्ट्स, आर्चेस और स्पायर्स से भरी हुई। मार्बल की चौड़ी सीढ़ियां बालकनीज तक ऊपर जाती थी या नीचे खुले कोर्ट्स में उतरती थी। रिसेप्शन और बैंक्वेट के लिए विशाल हॉल्स थे, जबकि छोटे चेम्बर्स में एलिगेंट रिसेप्शन रूम्स थे जहां फैमिली मेंबर्स बिना किसी डिस्टरबेंस के मेहमानों से मिल सकते थे। इन्हीं में से एक ग्रेट रूम में वे लंच कर रहे थे। उसकी सीलिंग इतनी ऊंची थी कि नजर ऊपर उठाते ही खो जाती। डाइनिंग टेबल बेहद विशाल था। वह फर्श पर कई टाइल्स तक फैला हुआ था और लगभग 1 मीटर ऊंचे रेड पोडियम पर रखा था।
टेबल के चारों ओर, खासकर साउथ वेस्ट वॉल की तरफ, अनगिनत चेयर्स लगी थीं, उन विजिटर्स के लिए जो बिना बताए आ सकते थे। ऑपोजिट साइड वॉल के पास भी कुछ एक्स्ट्रा सीट्स रखी थी। कुल मिलाकर वहां कम से कम 100 डाइनिंग पोजीशंस थीं। सीलिंग से लटके काउंटलेस एंशिएंट चैंडलियर्स पूरे हॉल को रोशन कर रहे थे। हर एक में दर्जनों नकली कैंडल्स जली हुई थी। रिचर्ड, घर का मुखिया, एक आर्ट कलेक्टर था और उसे यह एंशिएंट डिजाइन बेहद पसंद था, जो उसके घर को इतना पिक्चर्स बनाता था। रूम के सेंटर में दो बड़े विंडोज थे, जिनसे बाहर का गार्डन दिखाई देता था। ग्लास के उस पार पेड़, झाड़ियां और हर तरफ खिले फूल थे। ग्रीन ग्रास से ढकी लॉन्स के बीच बर्ड्स गा रहे थे, कुछ ऊपर हवा में उड़ रहे थे। कभी कभी स्क्विरल्स खिड़की के नीचे से तेजी से भागती दिख जाती थीं। एमिली ग्रेसफुली अपनी चेयर से उठी। वह एक एलिगेंट और बेहद खूबसूरत यंग वुमन थी। उसके डार्क हेयर कंधों पर खुले हुए थे। उसने ब्लू सिल्क ड्रेस पहनी थी, जिस पर सिल्वर थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी थी। उसका चेहरा अभी थोड़ा चाइल्डिश था, लेकिन उसमें मैच्योरिटी की झलक साफ दिखती थी। उसके फिगर में भी वही बात थी। पूरी तरह ग्रोन होने के बावजूद उसमें काफी चार्म था। उसकी एमरल्ड ग्रीन आईज किसी को भी मेस्मराइज कर सकती थी। जब वह बोलती तो लगता जैसे इतनी खूबसूरती किसी इंसानी शरीर से आ ही नहीं सकती। फिर भी अपनी अपीयरेंस के बावजूद उसे मेन को अट्रैक्ट करने में कभी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन उसे ये अटेंशन पसंद नहीं थी। डोर तक पहुंचकर वह एक पल रुकी, फिर पीछे मुड़कर अपने फैमिली मेंबर्स की ओर देखा, जो अब भी टेबल पर बैठे थे। स्वीट स्माइल के साथ उसने हल्की सी कर्टसी की और फिर हॉल के पार अपने क्वार्टर्स की तरफ चली गई। ज्यादा समय नहीं लगा उसे अपने रूम तक पहुंचने में। वहां उसने सीधे अपनी वीआर कैप्सूल की ओर कदम बढ़ाए। अपीयरेंस के उलट वह एक एविड गेमर थी और उसे ब्लेड हंट खेलना बेहद पसंद था। एक फर्स्ट पर्सन शूटर ना, जो मॉडर्न वॉरफेयर पर आधारित था और मिलिटरीज द्वारा डेवलप किया गया था। इस गेम में सब कुछ था, लैंड फाइट से लेकर नेवल बैटल्स तक। इसमें ब्रेन क्रिस्टल पावर्स का इस्तेमाल अलाउड नहीं था, क्योंकि उन्हें हर प्लेयर के लिए कस्टम बनाना पड़ता, और यही वजह थी कि यह इतना पॉपुलर था। यह गेम लोगों को स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी बराबरी से लड़ने का मौका देता था, बिना वीक ब्रेन क्रिस्टल की वजह से हारे। इसे 2 साल पहले रिलीज किया गया था और मिलिटरीज इसे लगातार अपडेट करते रहते थे, नए वेपन्स, व्हीकल्स और बहुत कुछ जोड़ते हुए। एमिली इस गेम की बड़ी फैन थी और एक हाई रैंकर भी। हालांकि उसका एक छोटा सा सीक्रेट था, अगर वह बाहर आ जाए तो लोग उसे चीट कहने लगते। गेम में लॉग इन करते ही उसके सामने यूजुअल मेन स्क्रीन आ गया। उसने एक क्विक मैच खेलने का फैसला किया, जो आमतौर पर 30 मिनट चलता था। उसने अपना कैरेक्टर लोड किया, लॉबी सिलेक्ट की और गेम में एंटर कर गई। वह एक बिल्डिंग के अंदर स्पॉन हुई, हाथ में अपनी फेथफुल स्नाइपर राइफल लिए, जिसे उसने गेम में काफी समय और पैसा खर्च करके खरीदा था। एमिली तेजी से बिल्डिंग के अंदर गई और रूफ टॉप पर पहुंच गई। उसने क्राउच और ऑकुलस को एक छोटी वॉल पर रखा। स्कोप में झांकते ही उसने टारगेट एम किया और शॉट दाग दिया। फाइट का थ्रिल महसूस होने लगा। इंतजार करते हुए उसने देखा कि ये और प्लेयर उसकी पोजीशन की ओर बढ़ रहा है। एनिमी के बिल्डिंग के पास पहुंचते ही उसने शॉट मारा। एक्सप्लोडिंग बुलेट सीधा उसकी आंखों के पीछे लगी। फिर उसने आसपास देखा और जो भी उसके हाइडिंग स्पॉट तक आने की कोशिश करता, उसे शूट करती गई। एक और एनिमी प्लेयर को मारने के बाद उसने ध्यान से देखा। उसकी टीम बिना किसी रुकावट के एनिमी बेस की ओर बढ़ रही थी। 1 मिनट बाद उसके सामने एक मैसिव स्क्रीन उभरी, जिस पर लिखा था यू वन। उसके बाद लीडर बोर्ड दिखाई दिया। उसने अपनी टीम के लिए कुल 71 किल्स किए थे। पूरी एनिमी स्क्वाड को बिना अपनी जगह बदले खत्म कर दिया था। फर्स्ट पोजीशन पर उसका निकनेम चमक रहा था, इविल आई। एमिली ने धीरे धीरे हेलमेट उतारा और कैप्सूल के अंदर बने हुक पर टांग दिया। फिर उसने अपनी ड्रेस उतारकर बेड के पास कोने में फेंक दी, कम्फी पजामाज उठाए और कंप्यूटर चेयर पर बैठ गई। चलो देखते हैं आज क्या हुआ। लास्ट न्यूज, फ्रैंट सक्सेसफुली ब्रेच्ड हिनियंस फ्रंट लाइन्स। यह हेडलाइन और इसके साथ कई आर्टिकल्स फ्रैंट और हिन के बीच चल रही वॉर के बारे में थे। एमिली ने आर्टिकल पर क्लिक किया और स्क्रॉल करते हुए बड़ी ध्यान से न्यूज पढ़ने लगी। Hinian forces suffer major losses due to France Special Forces. A new individual has emerged from France forces during this last week. According to sources close to the military, this individual, whose name has remained hidden, was single-handedly able to beat enemy forces on their shores. Hin was forced to retreat behind Ferio City and is currently defending the city from France attack. Emily ने कई आर्टिकल्स पढ़े, सब हिन के खिलाफ हालिया वॉर की ही बातें कर रहे थे।
उसे हैरानी हुई कि ऑनलाइन इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उपलब्ध थी, खासकर वॉर्स के बारे में। ब्राउज करते करते वह एक फोटो तक पहुंची। किसी ने टैंक के पास से ली थी। पिक्चर में एक आदमी फुल बैटल आर्मर में दिख रहा था, एक सोल्जर के साथ चलता हुआ। दोनों ने सेम यूनिफॉर्म पहना था। न्यूज से संतुष्ट होकर एमिली बेड पर आ बैठी, आंखों को आराम देने के लिए। लेकिन जैसे ही वह बैठी, एक तेज माइग्रेन ने उसे जकड़ लिया। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह क्यों हुआ। उसे एक विजन आने वाला था, और जिस इंटेंसिटी का दर्द वह महसूस कर रही थी, उससे साफ था इस बार वह कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने वाली थी।